Bismillahirrahmanirrahim. My dear students, Assalamu alaikum. As I mentioned in the last lecture that today we will discuss about the random variable, probability distribution and the types of random variable, that is discrete and continuous, and also about the discrete probability distribution and continuous probability distribution. प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था इवेंट्स को और टाइप्स ऑफ इवेंट्स में हमने इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट इवेंट्स को डिस्कस किया था। तो आज का जो कंसेप्ट है वो है रैंडम वेरिएबल। व्हाट इज रैंडम वेरिएबल? देयर आर सिचुएशन अराइज व्हेन वी आर नॉट कंसर्न्ड अबाउट द एक्चुअल आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट, बट आवर इंटरेस्ट लाइज in how many times a particular characteristic exists. Suppose if we throw a coin 2 times, then it can be head head, head tail, tail head and tail tail, and if we are not interested in the actual number of how many times head head and head tail and tail tail, but our interest lies in the number of heads, how many times the number of heads occur. So if I took this example like this, if I draw a sample of size 2 raised to power 2 is equal to 4, and what will happen then? Suppose if a coin is thrown thrice, that is, our sample space will be it may be head head, head head and tail, and then move this tail in the center and front, and then take 2 tails and 1 head, tail head tail and head tail tail, and the last one is tail tail and tail. So these are the possibilities. If I throw 3 coins or I throw 1 times 3 times, the same thing. Now we are not actually interested in the actual outcomes head head hand, but we are interested in the how many times the head occurs. Here 3 times, here 2 times, 2 times, 2 times, 1 times, 1, 1 and 0. ठीक है? Then if we assign the numerical values to these possible outcomes, then the series of such numerical values is called a random variable. So we can define random variable as, if we perform an experiment and we assign numerical values to the actual outcomes of that experiments, the series of such numerical values is called random variable. I think you might have understand. Then we use capital letters for random variables. We denote random variables को abbreviate करते हैं R.V, random variables by capital letters by H से X, Y, Z. ओके, तो आई थिंक आपको इस चीज़ समझ आ गई होगी। अब अगर मैं इसमें रैंडम वेरिएबल लूँ तो व्हाट इज रैंडम वेरिएबल? द नंबर ऑफ हेड्स, नंबर ऑफ हेड्स दैट मे टर्न अप व्हेन 3 कॉइन्स आर टॉस्ड। तो नंबर ऑफ हेड्स में क्या आ सकता है? 0 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है और 3। तो दिस इज अवर रैंडम वेरिएबल, दिस इज अवर रैंडम वेरिएबल।
because we assign the numerical values to the possible outcomes of random experiment. ठीक है, हमने उनको numerical values assign कर दी और उसके बाद हमने इसको एक series में लिख दिया. The series of such values is called a random variable. It is also defined as the a real valued function defined over a sample space. Random variable is also defined as a real valued function defined over a sample space is called random variable. ठीक है, अब आप देखें कि if I throw two dice, then two dice, comma, then the random variable may be is the sum of dots turn up. The random variable may be the sum of dots that may turn up. तो सम ऑफ डॉट्स क्या हो सकते हैं जब दो डाइस तो थ्रो किया जाए. लास्ट प्रीवियस लेक्चर के अंदर भी हमने इसकी बात की थी एंड वी डिड दिस. हमने एक सैम्पल स्पेस बनाया था 2 3 4 5 6, इस तरह बाद 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन. द लास्ट वैल्यू वाज 12. ठीक है, तो यहाँ पर रैंडम वेरिएबल किस चीज़ को शो होता रहा है, सम ऑफ द डॉट्स. तो सम ऑफ द डॉट्स क्या 1 1 आ सकता है, तो 1 1 1 + 1 2 है. तो इसी तरह ये आ जाएगा 2 3 4 up till so on up till 12. So this is our random variable because we have defined the random variable as sum of the dots. इसी तरह जो टॉइन का जो भी आपने क्वेश्चन किया इससे पहले हमने इसको एक्सप्लेन किया एग्जांपल के अंदर, द नंबर ऑफ हेड्स. तो यहाँ पर y एक वेरिएबल बन सकता है द नंबर ऑफ टेल्स. तो टेल्स क्या हो सकती हैं 0 1 2 3. अगर आप स्टार्ट में देखें तो यहाँ पर एच एच एच, यहाँ पर 0 टेल है, यहाँ पर 1 टेल है, उसके बाद फिर 1 1 1 3 टाइम्स 1 आईडी, उसके बाद 3 टाइम्स 2 टेल्स हैं और फिर 3 टेल्स हैं. ठीक है, तो 0 1 2 3. तो आपने इसमें से जो चीज़ लर्न की है वो ये कि अगर कोई रैंडम एक्सपेरिमेंट किया जाए और उसकी जो पॉसिबिलिटीज़ वेरियस पॉसिबिलिटीज़ उनको न्यूमेरिकल वैल्यू असाइन कर दी जाए तो सीरीज ऑफ सच न्यूमेरिकल वैल्यूज इज कॉल्ड रैंडम वेरिएबल. ठीक है, नाउ we have two types of random variable. The number one is discrete and the other one is continuous. Discrete random variable and continuous random variable. So these are the two types of random variables. If a random variable contains the values which are in whole numbers, ठीक है, which are countable values, such as the number of children in family. For example, number of family. You can take number of road accidents. ठीक है, number of letters received. And the number of
and the number of rooms in a house, etc. तो these are the few examples of discrete random variable. ठीक है, तो जब एक वेरिएबल when a variable takes values which are in whole number or which are countably finite, जिनको हम काउंट कर सकते हैं 0 के बाद 1 2 3 4 एंड सो ऑन, और इनकी वैल्यूज क्या हो होल नंबर के अंदर आए, तो सच वेरिएबल इज कॉल्ड यस discrete random variable. If it is not in whole number, if a variable takes all possible values between the two limits, say a and b, then such variable is called continuous variable. ठीक है, continuous variable को define करना चाहें तो क्या है, if a variable takes all possible values between the two limits, say a and b, where b is greater than a, then such variable is called continuous variable. Suppose आप देखिए the life length of a bulb may be 0 to या 1 to 100 hours. ठीक है, तो this is an example of continuous variable. For example, life of a bulb. ठीक है, इसी तरह हाइट ऑफ अ पर्सन, वेट, ठीक है, एंड टेम्परेचर at a certain place. etc. These are the examples of continuous random variable. ठीक है अजीज तलबा, आपको समझ आ गया होगा कि डिस्क्रीट और कॉन्टीन्यूस में फ़र्क क्या है. डिस्क्रीट में होल नंबर में है और कॉन्टीन्यूस में फ्रैक्शन में वैल्यूज़ भी आ सकती हैं. ठीक है, सपोज मैंने लाइफ ऑफ ए बल्ब कहा है, तो मे बी बल्ब की लाइफ जो है वो 0 से लेकर अप टू 100 आवर्स हो, up to 2000 hours हो and so on. So it means it can take the value 99.99 hours, 99.999999 and 8 point something and so on. तो आपने कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल देखा, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल देखा. अब हम नेक्स्ट कंसेप्ट है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, उसकी तरफ बढ़ते हैं. व्हाट इज प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन? अजीज तलबा, अगर एक रैंडम वेरिएबल के साथ उसकी करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज को एसोसिएट कर दिया जाए, देन सच टेबुलर फॉर्म इज कॉल्ड probability distribution. If we assign the random variable with their corresponding probabilities, then such tabular form is called probability distribution. ठीक है, यानी अगर आपने एक रैंडम वेरिएबल बनाया और उसकी तमाम वैल्यूज के साथ आपने उसकी करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज लिखती. सपोज हमने लास्ट एग्जांपल की थी, जैसे कि हमने रैंडम वेरिएबल बनाया था, एस था हमारे पास. मैं इसको सॉल्व करता हूँ और इसमें आपको बताऊंगा कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे बनती है. सपोज हमारे पास ये सैंपल स्पेस था और h था नंबर ऑफ
हेड्स को शो कर रहा है, then h can be 1 0 1 2 up to 3 because you know that यहाँ पर 0 भी हेड आया हुआ है, जैसे लास्ट में टेल टेल हो तो 0 हेड है, उसके बाद 1 हेड आ रहा है 3 केसेस में, उसके बाद 2 हेड्स आ रहे हैं और फिर 3 हेड्स आ रहा है। तो रैंडम वेरिएबल हमारा क्या शो कर रहा है, नंबर ऑफ हेड्स को शो कर रहा है। अब अगर आपसे कहा जाए मेक अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रैंडम वेरिएबल एक्स, तो इससे मुराद ये है कि आपने सबसे पहले रैंडम वेरिएबल एक्स क्या नंबर ऑफ हेड्स को शो कर रहा है, मेक अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। क्वेश्चन ये बन सकता है इफ 3 कॉइन्स आर टॉस्ड फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ हेड्स। अब क्वेश्चन क्या है, इफ 3 कॉइन्स आर टॉस्ड फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ हेड्स। तो सबसे पहले हमने सैंपल स्पेस बना लिया, उसके बाद हमने रैंडम वेरिएबल डिफाइन किया, अब हमने प्रोबेबिलिटीज फाइंड करनी है। सपोज प्रोबेबिलिटी दैट x इज इक्वल टू 0, इससे मुराद क्या है, व्हाट इज x, नंबर ऑफ हेड्स क्या हो, 0 हो। इससे मुराद क्या है कि 0 हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तमाम की तमाम क्या हो, टेल हो। तो कितने केसेस हैं, 1 डिवाइडेड बाई 8, टोटल पॉसिबल केसेस कितने हैं, 8। तो प्रोबेबिलिटी की वही बेसिक डेफिनेशन यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, ठीक है। इसी तरह प्रोबेबिलिटी दैट x इज इक्वल टू 1, दिस इज इक्वल टू 1, हाउ मैनी केसेस, तो जहाँ पर 1 हेड आया हुआ है, दिस एंड दिस, देयर आर 3 केसेस, तो इट इज 3/8। एंड प्रोबेबिलिटी दैट x इज इक्वल टू 2, इट मीन्स 2 हेड्स, हाउ मैनी टाइम्स 2 हेड्स अकर, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 2 है, तो 3 टाइम्स, तो दिस इज आल्सो 3/8। प्रोबेबिलिटी दैट x इज इक्वल टू 3, तो 1/8, यानी 3 हेड्स कितनी दफा आए। अब आपने देखा, अब मैं आपसे क्वेश्चन ये था कि 3 कॉइन्स आर टॉस्ड फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ हेड्स। तो आपने क्या किया, आपने एक्स रैंडम वेरिएबल को डिफाइन किया, उसके बाद प्रोबेबिलिटीज निकाल दी, जैसे कि आप इससे पहले इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी निकालते थे। यहाँ पर रैंडम वेरिएबल्स के अंदर कई इवेंट्स हैं, ठीक है, यहाँ पर रैंडम वेरिएबल के अंदर कई इवेंट्स हैं। नाउ इफ वी राइट दिस इन टेबुलर फॉर्म, जिसमें हम एक्स लिखें 0 1 2 3 और उसके सामने प्रोबेबिलिटी दैट x इज इक्वल टू x, दिस स्मॉल x इज डिस्क्राइब्स असाइंड वैल्यू, ठीक है। ये अब 0 1 2 3 जो है ये स्मॉल x को रिप्रेजेंट कर रहा है, वेयर x इज ए कैपिटल लेटर, कैपिटल X इज अ रैंडम वेरिएबल एंड दिस इज द सम पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ दैट रैंडम वेरिएबल, स्मॉल x मीन्स। तो प्रोबेबिलिटी दैट x इज टू 0 की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/8, 1 आने की 3/8, 3/8, 1/8 and sum is 1। we know that कि probability जो है उसका sum क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो this tabular form is called probability distribution। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का कंसेप्ट आपने ले लिया। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, जब चूंकि वेरिएबल जो है वो 2 टाइप्स के हैं, डिस्क्रीट भी है और कॉन्टिन्यूस भी है, तो इसीलिए यहाँ पर डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन भी हो सकता है। सपोज अगर आपका वेरिएबल डिस्क्रीट हो और उस डिस्क्रीट वेरिएबल की आप प्रोबेबिलिटीज करस्पॉन्डिंग निकालने के बाद टेबुलर फॉर्म में लिखते हो, तो इसको हम क्या कह सकते हैं, डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। क्या कहेंगे, डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। और अगर आपका रैंडम वेरिएबल कंटिन्यूस हो और उसकी करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी साथ लिख दी जाए, तो उसको हम बोलेंगे कंटिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, दोनों की समझ आ गई, डिस्क्रीट और कंटिन्यूस में क्या फ़र्क है। यानी डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन और कंटिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बेस करती हैं वेरिएबल के ऊपर, कि अगर आपका रैंडम वेरिएबल डिस्क्रीट है तो उसकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाएंगे तो वो डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कहलाएगी। और अगर रैंडम वेरिएबल कंटिन्यूस है और उस कंटिन्यूस की आप प्रोबेबिलिटीज फाइंड करेंगे और रैंडम वेरिएबल के साथ असाइन करेंगे, तो उसको हम क्या कहेंगे, कंटिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अजीज तलबा, आपने यहाँ तक
इसमें सीख लिया होगा कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंटीन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अब मैं कुछ एग्जांपल्स सॉल्व करूंगा इस लेक्चर में जो हमारे पास रिमेनिंग टाइम है, कि जिसमें आप you have to find the probability distribution of certain random variables। ठीक है, तो बीजे के शर्मा की बुक है ये वाली, तो इसमें से मैं लूँगा कुछ एग्जांपल्स या इसमें से कुछ क्वेश्चन जो है वो मैं सॉल्व करूँगा। तो चैप्टर नंबर 7 के अंदर प्रोबेबिलिटी का चैप्टर नंबर 7 है, उसमें आप देख सकते हैं मैं इसमें से क्वेश्चन सॉल्व करूँगा आपके सामने जी। अब क्वेश्चन इज़ दैट, क्वेश्चन मैं पढ़ देता हूँ, उसके बाद फिर मैं इसको सॉल्व करूँगा आपके सामने। और व्हाट्स कंटेन्स 12 आइटम्स ऑफ विच 3 आर डिफेक्टिव। A sample of 3 items is selected at random from this box। ठीक है, अब इतनी थ्योरी पढ़ने के बाद मैं इसका सैंपल स्पेस भी बना सकता हूँ, और उसके बाद इसका वेरिएबल आगे बात होगी, वेरिएबल की बात कर सुनते हैं क्या बोलता है वो। इफ x रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ डिफेक्टिव आइटम्स ऑफ द 3 सिलेक्टेड आइटम्स, डिस्क्राइब द रैंडम वेरिएबल x completely and obtain its expectation। तो एक्सपेक्टेशन अभी हमने नहीं पढ़ा हुआ, लेकिन मैं उसको साथ एक्सप्लेन कर दूंगा कि व्हाट इज एक्सपेक्टेशन। ठीक है, एक्सपेक्टेशन इज बेसिकली अगर रैंडम वेरिएबल की वैल्यूज उसकी करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज को साथ मल्टीप्लाई कर दिया जाए, और मल्टीप्लाई करने के बाद उसको ऐड कर लिया जाए, दैट सम इज कॉल्ड एक्सपेक्टेशन ऑफ द वेरिएबल। एक्सपेक्टेशन ऑफ द वेरिएबल, इसको सिंपल इसकी डेफिनेशन जो है मैं आज एक्सप्लेन कर दूंगा जब ये एग्जांपल सॉल्व करता हूँ, क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ। साइज में से पेज 242 पर है ये क्वेश्चन, और इसको मैं दोबारा पढ़ देता हूँ। अ बॉक्स कंटेन्स 12 आइटम्स एंड 2 ऑफ विच आर डिफेक्टिव। इट मीन्स 10 आर गुड एंड 2 डिफेक्टिव। ठीक है, टोटल 12 है। इफ रैंडम सैंपल ऑफ 3 आइटम इज सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम दिस बॉक्स, तो 3 उसमें से सिलेक्ट हुए किए गए हैं एट रैंडम। ठीक है, इफ x रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ डिफेक्टिव आइटम्स ऑफ द 3 सिलेक्टेड, तो x रैंडम वेरिएबल क्या है, नंबर ऑफ डिफेक्टिव्स को शो कर रहा है। तो डिफेक्टिव्स क्या हो सकते हैं, 0 डिफेक्टिव, 1 डिफेक्टिव एंड 2, बिकॉज देयर आर टोटल 2। ठीक है, और यहाँ पर अजीज तलबा ये NCR की कम्बिनेशन की ज़रूरत पड़ेगी, शायद हमने इससे पहले इसको डिस्कस नहीं किया, यहाँ पे उसकी बात चूँकि आ गया क्वेश्चन इससे रिलेटेड, तो उसको भी हम डिस्कस कर लेंगे कि अगर हमारे पास टोटल 12 आइटम्स हैं या इसके अंदर बॉक्स कंटेस्ट आइटम्स हैं, तो इसमें से हम 3 आइटम्स अगर ड्रॉ करना चाहे, हाउ मैनी पॉसिबल वेज दीज 3 आइटम्स कैन बी ड्रॉन। ठीक है, इसको हम बोलते हैं 12C3 NCR। ये बेसिकली फार्मूला हम यूज करते हैं n कॉम्बिनेशन ऑफ R। ठीक है, और यहाँ पर n जो है 12 होगा और R क्या होगा, 3 होगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले जी आप बॉल्स की जो है आइटम्स की पोजीशन लिखें कि 10 + 2 दिस इज इक्वल टू 12। तो 10 are good and they are defective and the total is 12। ठीक है, और x जो है वो शो कर रहा है नंबर ऑफ डिफेक्टिव्स को। नंबर ऑफ डिफेक्टिव आइटम्स। ठीक है, अब आप देखिए डिफेक्टिव्स क्या हो सकते हैं, 0, 1 एंड 2। अब लेकिन हमने जो सैंपल ड्रा किया वो 3 का किया, लेकिन अगर यहाँ पर 3 डिफेक्टिव होते या 4 डिफेक्टिव होते तो सैंपल जो 3 का ड्रा था तो यहाँ पर हम 3 को भी ले आते। अब हम 3 को नहीं ला सकते बिकॉज डिफेक्टिव है इसमें टोटल 2। तो इस मीन्स कि सबसे पहले हमें इसकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है। किसकी, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x बनाना है। तो प्रोबेबिलिटी दैट x इज इक्वल टू 0, व्हाट डज दिस मीन, कि कोई डिफेक्टिव आइटम ना आए। इससे मुराद ये है कि सारे के सारे गुड हों। तो ये आएगा 10C3 डिवाइडेड बाई 12C3।
अजीज तलबा ये वही डेफिनेशन यूज हुई है, नंबर ऑफ फेवरेबल चेसेस डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ चेसेस। तो यहाँ पर नंबर ऑफ फेवरेबल चेसेस कितने थे, 10 हमारी फेवर में आ रहे थे, क्योंकि 0 डिफेक्टिव था तो 10C3, 10 कॉम्बिनेशन ऑफ 3। दीज आर द पॉसिबल वेज कि 10 में से 3 का आइटम सेलेक्ट कितने तरीकों से हो सकते हैं। हाउ मैनी पॉसिबल वेज दीज 3 आइटम्स कैन बी सिलेक्टेड। ठीक है, हाउ मैनी पॉसिबल वेज दीज 3 आइटम्स कैन बी सिलेक्टेड। और 12C3 ये है कि टोटल में से जब 3 ड्रॉ हो तो हाउ मैनी पॉसिबल वेज दे कैन बी सिलेक्टेड। तो दिस इज इक्वल टू 27/64। अब यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ, बेसिकली फार्मूला जहाँ पे यूज हुआ है NCR, शायद इससे पहले हमने डिस्कस नहीं किया। आप में से मे भी कुछ स्टूडेंट्स को ऑलरेडी दे नो दिस। कैलकुलेटर पे भी आप इसको हल कर सकते हैं। 12 लिखकर NCR को प्रेस करें और साथ उसके बाद 3 प्रेस करें, इज इक्वल प्रेस करें तो आपको वैल्यू आ जाएगी, ये 64 आ जाएगा। इसी तरह 10 प्रेस करके NCR का बटन उसको प्रेस करें और 3 प्रेस करें तो इज इक्वल प्रेस करें तो NCR की वैल्यू 10C3 की वैल्यू 27 आ जाएगी। अब इसका फार्मूला क्या है, NCR का फार्मूला है n फैक्टोरियल ओवर r फैक्टोरियल इनटू n माइनस r फैक्टोरियल। अब अगर आप कहें n फैक्टोरियल क्या है, n फैक्टोरियल से मुराद यह है कि n इंटू n माइनस 1 एंड सो ऑन 2.1। यानी अगर मैं कहता हूँ 4 फैक्टोरियल, उससे मुराद है 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, यहाँ पर n डालेंगे तो n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 एंड सो ऑन अप टू 2.1 यहाँ तक जाता है। तो ये एक फार्मूला है, इसको n कॉम्बिनेशन ऑफ r, यानी अगर आपके पास n टोटल आइटम्स हो उसमें से r आप सिलेक्ट करना चाहें, हाउ मैनी पॉसिबल वेज दीज r कैन बी सिलेक्टेड। ठीक है, विदाउट कंसीडरिंग द ऑर्डर। तो अब आप इस फार्मूले को अगर यहाँ पर लगाएं 10C3, तो 10C3 कैसे सॉल्व होगा, दिस इज 10 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 10 माइनस 3 फैक्टोरियल। तो देखिए क्या आता है, 10 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल और 10 माइनस 3 7 फैक्टोरियल। तो ये जो 10 फैक्टोरियल इसको लिख सकता हूँ 10 इंटू 8 9 इंटू 8 इंटू 7 फैक्टोरियल, और नीचे 3 फैक्टोरियल तो लिख सकता हूँ 3 इंटू 2 इंटू 1 और मल्टीप्लाई हो रहा है 7 फैक्टोरियल। तो ये कैंसिल हो जाएगा और 3 2s are 6, 3 3s are 9, 2 5s are 10। ठीक है, और इसको सिंप्लीफाई करें, $120। तो ये 120 आता है जी इसकी वैल्यू। इसी तरह आप हल करें अगर इसको 12C3 तो उसमें देखिए क्या आता है 12C3। तो इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में भी आपको बता दूं, तो 12 इंटू 11 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2 इंटू 1, यानी 3 तक मैं ले जाऊँ। अब इसको सॉल्व करें उसी तरीके से तो यही चीज़ बचती है जो रिमेनिंग होती है। 3 2s are 6, 6 1s are and 6 2s are, तो 2 2 0, तो 2 2 0 आ रहा है जी। तो इसको सिंप्लीफाई करें तो देखिए क्या आता है 120 डिवाइडेड बाई 2 2 0, तो 6/11 आ रहा है इसका। Probability that x is equal to 1, it means one defective, और तो जब 1 डिफेक्टिव है तो 10C2 2 गुड होंगे, 1 डिफेक्टिव है तो 2C1 डिवाइडेड बाई 12C3। तो इसको सिंप्लीफाई करें 10C2, तो 10C2 जो होगा
10 इंटू 9, 2 इंटू 1 तो 45 आता है, मल्टीप्लाई बाई 2c1 2 और डिवाइडेड बाई 12c3 तो 12c3 क्या आता है 220। तो इसको सिंप्लीफाई करें तो क्या आता है 45 और ये 2 से कैंसिल होगा, ठीक है। इसको मजीद आगे आप कैंसिल कर सकते हैं, इसको हल करके लिख सकते हैं। प्रोबेबिलिटी दैट h इज इक्वल टू 2, दिस इज इक्वल टू 10c2 है तो 10c 1 रह जाएगा और 2c2 डिवाइडेड बाई 12c3। तो इसको भी आप सिंप्लीफाई कर लें और देखिए क्या आंसर 10c1 10 आ रहा है तो 10 डिवाइडेड बाई 220 ये कैंसिल हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 1/22। तो अजीज तलबा आपने देखा, अब आप इसको टेबुलर फॉर्म में लिख दें और इसके बाद वो यू कैन राइट इन। अजीज तलबा अब आप इसको टेबुलर फॉर्म में लिख दें और लिखने के बाद वो जो फॉर्म बनेगी उसको हम बोलेंगे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रैंडम वेरिएबल x, ठीक है। अब यहाँ पे उसने क्वेश्चन किया था कि एक्सपेक्टेशन क्या है। एक्सपेक्टेशन ऑफ रैंडम वेरिएबल x, इसको हम लिखते हैं e ऑफ x। तो दिस इज बेसिकली x इंटू f ऑफ x, ठीक है, वेयर फॉर ऑल x ये तमाम वैल्यूज के लिए जी। तो अब अगर इस डेफिनेशन को देखा, यहाँ f ऑफ x जब हम p ऑफ x भी लिख सकता था, दिस इज आल्सो इक्वल टू समेशन x इंटू p ऑफ x। आप इसको देख लें, अगर या इसको नहीं देखना चाहते तो ये लास्ट जो मैंने लाइन लिखी है उस पर देख लें। तो अगर आपके पास एक वेरिएबल हो x, उसकी वैल्यू 0 1 एंड 2 है, उसके साथ p ऑफ x उसकी वैल्यूज आपके पास ठीक है। तो ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनी थी। जी, तो अब आप देख सकते हैं कि एक्सपेक्टेशन ऑफ x जो है दैट इज 0 1 2, उसके सामने उसकी करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज को लिख किया और इसको सम किया तो ये 1 भी आ गया। अब ये चीज़ तो वेरीफाई होगी कि हमने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन मालूम कर ली। आपसे क्वेश्चन ये आ सकता था ना, इफ x रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ डिफेक्टिव्स देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x। अब यहाँ पे उसने क्वेश्चन किया है देन आल्सो फाइंड द एक्सपेक्टेशन ऑफ x। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ x के लिए हमें एक और कॉलम बनाना पड़ेगा, x इंटू p ऑफ x। तो मल्टीप्लाई करें, 0 मल्टीप्लाई 12 बाई तो 0 ही आएगा और 9/22 और 2 1s are 2 तो 2/22। तो सम करें 9 to 11 11/22। तो इट मीन्स एक्सपेक्टेशन ऑफ x दिस इज इक्वल टू summation x into p of x and this is equal to 11/22 तो 1/2। तो दिस इज द आंसर ऑफ दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन। ठीक है, तो आई थिंक आपको समझ आ गया होगा इसमें। अब मैं एक कंटिन्यूस केस में करता हूँ
कि कॉन्टीन्यूस केस के अंदर कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं। जाहिर बात है कॉन्टीन्यूस केस के अंदर समेशन नहीं आएगी, डिस्क्रीट केस के अंदर समेशन का वर्ड हम यूज़ करते हैं सम, और जब कॉन्टीन्यूस केस होगा तो वहाँ पर इंटीग्रल आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए इस एग्जांपल वहाँ से हम लेते हैं। जी तलबा, अब हम एक केस लेते हैं कॉन्टीन्यूस साइड से, तो एग्जांपल है एक, हमें क्वेश्चन ये दिया हुआ है ए रैंडम वेरिएबल x is of continuous type with PDF to x, where x lies between 0 and 1 and 0 otherwise. क्वेश्चन ये कहता है फाइंड पार्ट 1 में वो कहता है प्रोबेबिलिटी दैट x इज इक्वल टू 1/2। पार्ट 2 में बोलता है प्रोबेबिलिटी दैट x is less and equal to 1/2, and third part में probability that x is greater than 1/4। ठीक है, तो ये हमने मालूम करनी है। तो अब सबसे पहले देखिए कि प्रोबेबिलिटी का जो सम है दैट शुड बी 1, तो इसको ज़रा टेस्ट तो करें कि इसका सम 1 आता है। ठीक है, फर्स्ट वी चेक दैट द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 1, यानी ये इसका फार्मूला है कि माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एफ एक्स इंटू डी एक्स, दिस शुड बी 1। ठीक है, टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होती है 1। अब आप देखिए माइनस इन्फिनिटी लोअर लिमिट के लिए यूज़ हो रहा है और प्लस इन्फिनिटी जो है ये अपर लिमिट के लिए यूज़ हो रहा है, और इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमारी लोअर लिमिट क्या है 0 और अपर लिमिट क्या है 1, और एफ एच की जो वैल्यू पुट कर दें 2x और साथ डी एक्स फार्मूले का आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करें, 2 कॉमन बार चला गया, कांस्टेंट वैल्यू थी x इंटू डी एक्स, तो इसको इंटीग्रल करना है तो 2 इंटू, तो ये आ जाएगा x की पावर 2, ठीक है, और ओवर 2 0 to 1। ठीक है जी, तो ये 2 से कैंसल, और उसके बाद आप पुट कर दें तो 1 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 1, बिकॉज इंटीग्रल का ये फार्मूला है कि h की पावर n इंटू डी एक्स अगर हो तो इसका फार्मूला क्या है h की पावर n प्लस 1 ओवर n प्लस 1, और अगर यहाँ लिमिट्स है माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, तो साथ ये लिमिट्स आ जाती हैं ये सपोज माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। तो ये फार्मूला मैंने यहाँ पे यूज़ किया इस जगह पे और इसको सॉल्व किया। इंटीग्रेशन को सॉल्व करने का तरीका जो है ये में आपने पढ़ा होगा, तो यहाँ पे मैंने इसको लिख दिया। तो अब देखिए कि ये सम जो है 1 आ गया, इसका मतलब ये हुआ अगर सम 1 आ जाए तो इसको हम कहते हैं इट इज़ ए प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है। अगर सम 1 ना आता तो इट वाज नॉट ए प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। फिर हमें इसको 1 लाने के लिए सपोज यहाँ पे आंसर 3 आ जाता तो यहाँ उसके ऊपर क्वेश्चन के ऊपर में 1/3 लेना पड़ता, ठीक है, उसको हल करने के लिए। अब क्वेश्चन ये है पार्ट नंबर 1 में कहता है probability that x is equal to 1/2 find करो and this is equal to 0, because we are dealing with the continuous variable whereas this is an exact value। ज़हन में रखें continuous variable के अंदर आपको 2 limits दी हुई होंगी, always there will be 2 limits between which the continuous random variable lies, ठीक है, और यहाँ पर 8 की वैल्यू दी हुई है। तो जब किसी 8 सिंगल पॉइंट के ऊपर कॉन्टीन्यूस वेरिएबल हमेशा वैल्यू क्या होता है, प्रोबेबिलिटी फंक्शन हमेशा वैल्यू क्या देता है 0, तो इसका आंसर तो साफ आपने लिख देना है 0, और इसमें लिखते हैं बिकॉज वी आर डीलिंग विद द कॉन्टीन्यूस रैंडम वेरिएबल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि प्रोबेबिलिटी दैट x इज लेस देन इक्वल टू 1/2,
प्रोबेबिलिटी दैट h इज लेस देन इक्वल टू 1/2। इसका मतलब ये हुआ कि आपको जो अपर लिमिट दी हुई है 1/2, तो लोअर लिमिट क्या है, कहाँ से स्टार्ट हो रहा हमारा फंक्शन 0 से, तो ये आ जाएगा f(h) इंटू dh। अब आप वैल्यू पुट कर दें f(h) इंटू dh की, तो 2h वैल्यू थी तो 2 कॉमन ले लिया, h आ गया इंटू dh आ गया। अब इसको सॉल्व करें तो ये सॉल्व होने के बाद h²/2 आ गया, इंटीग्रल सॉल्व हुआ और साथ लिमिट आ गई। इसमें पुट कर दें, 2 से कैंसिल है, तो ये हल होने के बाद ये आ जाएगा 1/2 का स्क्वायर माइनस 0 1/2 की पावर 2 माइनस 0 की पावर 2, 0 की पावर 2 इज इक्वल टू 0। तो ये आ गया 1/4, इसका आंसर आ गया। ठीक है जी, 1/4। अब अगले पार्ट में हम देखें, नेक्स्ट पार्ट के अंदर दैट वाज सेकेंड, तो थर्ड पार्ट में हमसे वो कहता है प्रोबेबिलिटी दैट h इज ग्रेटर देन 1/4, इसको फाइंड करें। इससे मुराद क्या है कि 1/4 से बड़ा हो, तो 1/4 से बड़ा कब होगा, यानी 1/4 से ऑनवर्ड, और कहाँ तक जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू क्या है 1, तो ये आ जाएगी। अब इसमें पुट करें f(h) की वैल्यू, तो 1/4 1h इंटू dh, तो दिस इज आल्सो इक्वल टू h²/2 1/4 और 1 2 से कैंसल। अब लिमिट पुट कर दे 1 का स्क्वायर माइनस 1/4 का स्क्वायर, इसको हल करें 1 माइनस 1/16, तो इसको 16 सॉल्व करने के बाद क्या आ जाएगा जी, 16 माइनस 1 15, 15/16। So this was the question about the continuous probability distribution and अब इसमें अगर आपसे वो क्वेश्चन कर दे सपोज यहाँ पर कि फाइंड द एक्सपेक्टेशन ऑफ x, एक पार्ट और हम इसमें बना सकते हैं कि फाइंड एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x, और साथ इसके अंदर एक चीज़ और ऐड कर ले वेरिएंस ऑफ x। तो आपको पता है कि, तो मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक्सपेक्टेशन ऑफ x का फार्मूला क्या है, एक्सपेक्टेशन ऑफ x इज इक्वल टू -∞ to +∞ h इंटू एफ ऑफ x इंटू dx। तो इससे पहले जो हमने किया था दैट वाज अबाउट डिस्क्रीट केस, अब हमने कंटिन्यूस केस के लिए लिख दिया, सिर्फ इंटीग्रल की जगह पे, सॉरी सिर्फ समेशन की जगह पर इंटीग्रल आ गया, बाकी सारा केस वही है। तो इसको आप सॉल्व करें तो लिमिट हमारी क्या है 0 to 1 है, h इंटू एफ ऑफ h क्या है 2h इंटू dh। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 2 कॉमन आ गया, h² हो जाएगा 0 to 1 इंटू dh। तो इसको भी आप हल करें तो h की पावर 3/3 इंटीग्रेशन करने के बाद 0 to 1, तो ये आ जाएगा 2/3 यहाँ पे आ रहा है। अब 1 को पुट करें 1 का क्यूब माइनस 0 का क्यूब, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 1 का क्यूब, तो ये इसका आंसर 2/3 आ जाएगा। ठीक है, तो दिस वाज द एक्सपेक्टेशन ऑफ x। अब आप वेरिएंस ऑफ x का भी देख लें। वेरिएंस ऑफ x, वेरिएंस हमने पढ़ा था फर्स्ट लेक्चर के अंदर, फर्स्ट और सेकंड लेक्चर में, तो दैट इज इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ x स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ x होल स्क्वायर। ठीक है, एक्सपेक्टेशन ऑफ x हम निकाल चुके हैं 2/3, हमें चाहिए एक्सपेक्टेशन ऑफ x स्क्वायर। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ x स्क्वायर किसके इक्वल होगा, दिस इज इक्वल टू 0 to 1 h स्क्वायर इंटू एफ ऑफ x
साथ डी एच ये आ गया जी। तो इट बिकम्स 2 एच की पावर 3 इंटू डी एच 0 to 1 and 2 h की पावर 4 over 4, ठीक है, 0 to 1, 2 2s are and 2, तो 1/2 आ गया। तो इसको आप हल करेंगे तो यहाँ पे 1 पुट करें तो 1 की पावर 4 इज इक्वल टू 1 माइनस 0 की पावर 4 0, तो दिस इज इक्वल टू 1/2। अब आपके पास एक्सपेक्टेशन ऑफ एच स्क्वायर आ गया, इसको पुट कर दें इस इक्वेशन में, तो वेरिएंस ऑफ एच क्या आएगा 1/2 माइनस 2/3 का स्क्वायर। इसको हल कर लें 1/2 माइनस 4/9, तो 1/18। This was the mean and this was the variance। तो इसमें भी आपने चीज़ देख लिया। अब एक्चुअली ये सारा काम कराने का मकसद आपको ये था कि जो स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस है वहाँ पर रैंडम वेरिएबल के कंसेप्ट की ज़रूरत होगी, वहाँ पर प्रोबेबिलिटी का कंसेप्ट आएगा, ठीक है। तो इसके अलावा वहाँ पर अभी हम जब मैं डिस्क्रीट और कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन की बात करता हूँ तो अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हमने सम डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन जिसमें से बाइनोमियल और पाइसान को हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। बाइनोमियल क्या है, पाइसान में क्या है, और व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ पाइसान डिस्ट्रीब्यूशन। इसके अलावा हम एक सिर्फ कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन को डिस्कस करेंगे, दैट विल बी अबाउट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को डिस्कस करने का मकसद सिर्फ इतना है कि आगे जो नेक्स्ट हमारे पास स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस के अंदर जो हम कोर्स पढ़ेंगे उसमें नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की बार बार जिक्र आएगा, बार बार उसकी बात होगी। स्टैंडर्डाइज नॉर्मल वेरिएबल की बात होगी जिसको हम SNV स्टैंडर्डाइज नॉर्मल वेरिएबल बोलते हैं, उसकी बात होगी। तो ये सारे कंसेप्ट इस पॉइंट तक लाने के लिए सारे कंसेप्ट आपको दिए जा रहे हैं। तो यहाँ तक आप इसको आज इस लेक्चर को मैं एंड करता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम सम डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन और 8 कंटिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आई होप कि आपको काफ़ी कुछ इसमें समझ आया होगा एंड मैं इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़ एंड गुड लक।